وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے عید کا تحفہ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ کی ادائیگی کا فیصلہ۔ سرکاری محکموں کو خصوصی ہدایات، محکموں نے عید سے پہلے تنخواہیں ادا کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ معاشی استحکام اور عوامی ریلیف حکومت کی اولین ترجیح، فوری ریلیف اور طویل مدتی معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کے استحکام اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ ملک میں تیل کی موجودہ ذخائر، ایندھن کی مانگ پوری کرنے کے لیے درآمدات سے متعلق اقدامات پر بریفنگ۔ عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور بچت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ عالمی سطح پر کشیدگی، پاکستان کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں معاشی استحکام کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے فیصلوں کی بدولت تیل کی مسلسل فراہمی ممکن ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کار کمپنیز شفافیت کے ساتھ مقررہ قیمت پر تیل کی فروخت یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام کی ملاقات۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے وزیر اعظم کو آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوامی فلاح کے منصوبوں کی پیش رفت سے حوالے سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری کی قازقستان کے صدر قاسم جمال توقیف کو آئینی ریفرینڈم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان قازقستان کے ساتھ اپنے قریبی اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صدر مملکت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول، رب ذوالجلال کا احسان۔ پاکستان مملکت خداداد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب قدر کو معرض وجود میں آنے والی مملکت کی بنیاد، محفوظ، روشن اور ترقی یافتہ مستقبل کی نوید، کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں اور قربانیوں کا ثمر، آزاد وطن پاکستان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی کی صورتحال تسلی بخش۔ آئندہ ہفتوں کے لیے ایندھن کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے مکمل متحرک۔ متعلقہ ادارے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ذخائر اور مارکیٹ کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کی موجودہ حالات میں کفایت شعاری مہم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا ویڈیو لنک اجلاس۔ حکومت کفایت شعاری سے حاصل وسائل عوامی ترقی پر خرچ کرے گی۔ صوبائی کابینہ کے ارکان، معاونین خصوصی، پارلیمانی سیکرٹریز 2 ماہ کی تنخواہ وزیر اعظم فنڈ میں دیں گے۔ ارکان اسمبلی 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز کا 25% دیں گے۔ فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ $427 ملین سرپلس ریکارڈ۔ یہ جون 2025 کے بعد سب سے بڑا سرپلس ہے۔ جنوری میں بھی $60 ملین کا سرپلس رہا۔ سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ ملک کے بیرونی شعبے میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا ایکس پر پیغام۔
پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف، ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر، بھرپور ساتھ دینے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی حکومت اور عوام کا اردو میں خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستانی حکومت اور عوام کے تعاون اور حمایت پر تہہ دل سے مشکور ہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، اب تک 1400 سے زائد افراد شہید، 18,000 سے زائد زخمی، کسی کو جنگ بندی کے لیے نہیں کہا۔ ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، مذاکرات کے دوران ہم پر بلا جواز حملہ کیا گیا، ہم مضبوط اور مستحکم ہیں اور طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اتحادی آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے مدد میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آبنہ ہرمز کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا، منصوبے کا اعلان رواں ہفتے متوقع۔ کئی ملکوں نے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کو سیکورٹی دینے پر اتفاق کیا ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی پر زور، جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 92,000 برطانوی شہری مشرق وسطیٰ سے واپس آئے ہیں، ہمیں جلد آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا، تاہم یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، مسئلے کے حل کے لیے تیز تر اقدامات ضروری ہیں، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی نیوز کانفرنس۔ آسٹریلیا اور جاپان کا آبنائے ہرمز کی سیکورٹی کے لیے جنگی جہاز بھیجنے سے انکار، آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جنگی جہاز نہیں بھیجیں گے، آسٹریلوی وزیر ٹرانسپورٹ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر میری ٹائم سیکورٹی آپریشن شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جاپانی وزیر دفاع کا پارلیمنٹ میں موقف۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر قابض اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید، مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے گاڑی میں سوار ماں باپ اور 2 بچوں کو نشانہ بنایا، شہید بچوں کی عمریں 5 اور 7 سال کی تھیں، صہیونی آبادکاروں کے حملے میں بھی 1 فلسطینی شہید۔ پاکستان اور چین کے درمیان اہم معاملات پر مستقل رابطہ اور ہم آہنگی ہے، دونوں ملک قابل اعتماد شراکت دار اور قریبی دوست ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں افغانستان سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، خطے کے امن کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا پاکستان چین تعلقات اور حالیہ قیاسرائیوں پر رد عمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اعلیٰ سطح اجلاس، امن و امان، افغان مہاجرین کی واپسی، حوالہ ہنڈی، بھتہ خوری، اسمگلنگ کے خاتمے سمیت اہم امور پر تفصیلی بریفنگ۔ بلوچستان میں امن و استحکام کے قیام کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی خدمات حاصل کرنے، ایف آئی اے کو مزید فعال بنانے اور تمام خالی آسامیوں پر مقامی افراد کی بھرتی کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنانے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے سینئر صحافی حاجی نواز رضا کی قیادت میں نیشنل پریس کلب کے نومنتخب صدر عبدالرزاق سیال اور سیکرٹری ڈاکٹر فرقان راؤ کی ملاقات، وزیر اطلاعات کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد، صحافی برادری کو درپیش مسائل سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال، ہاؤسنگ کوٹا، پی ایس ٹی پی میں ملنے والی گرانٹ اور ہیلتھ انشورنس پر بھی تفصیلی گفتگو، حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی، عطا اللہ تارڑ۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کے علاقے باجوڑ میں سول آبادی پر مارٹر گولے کا حملہ، خیبر پختونخوا کے عوام کا سخت رد عمل، افغان فورسز نے معصوم لوگوں کو شہید کیا، پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے، عام لوگوں پر بمباری کرنا ظلم اور بربریت ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کوئی مذمت نہیں کی گئی اور نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف کسی صوبائی وزیر نے آواز اٹھائی، عوام خیبر پختونخوا۔ رحیم یار خان میں عمارت کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم لینے آئے 8 خواتین جام بحق، متعدد زخمی، صدر آصف علی زرداری کا افسوسناک حادثے پر افسوس کا اظہار، جام بحق خواتین کے لاحقین سے تعزیت اور ہمدردی، زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں اور متاثرہ خاندانوں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے، صدر مملکت۔
मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक होने का भारतीय दावा झूठ का पलंदा। कश्मीरी अवाम खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, बिला जवाज गिरफ्तारियां, कत्ल गारत और काले कवानीन का इस्तेमाल मामूल बन गया। फैशिस्ट मोदी हुकूमत आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए हालात मामूल के मुताबिक होने का प्रोपेगेंडा कर रही है। तर्जुमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। लेह और करगिल में हजारों लोगों की एहतजाजी रैलियां। भारत में मजहबी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जियां बायस तशवीश। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS और रॉ पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश। असास से मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़। भारत में मुसलमानों, मसीही और दीगर अक़लियतों को तशद्दुद और खौफ के माहौल का सामना। सख्त कवानीन के जरिए मजहबी तब्दीली को जुर्म बनाकर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जंगी तैयारे तेजस के बढ़ते हादसात। मेड इन इंडिया मंसूबे पर सवालात उठने लगे। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के वशुगुरु बनने के मकरू अज़ाइम ज़मीं बोस। 7 फरवरी को तेजस के तीसरे हादसे के बाद भारतीय फजाइया ने पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया। फजाइया को दरकार स्क्वाड्रन की तादाद भी मतलूबा सतह से कम। अफगान रहनुमा दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और पाकिस्तान के साथ कशीदगी पर तालिबान रजीम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगे। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाली तालिबान रजीम अफगानिस्तान में अमन कायम करने में नाकाम। तालिबान की शिद्दत पसंद हुक्मरानी अफगान अवाम की बुनियादी हुकूक के लिए खतरा बन गई है। अफगान रहनुमा। कल से 25 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA की मुतल्लिका इदारों को मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी नामजद खिलाड़ियों में शामिल। इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शेरली बेन शाल्विक भी नामजद। खवातीन में पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंडियन वेल्स टेनिस ओपन। इटली के यानिक सिनर ने पहली टाइटल अपने जीत लिया है। फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त। सिनर के मुकाबले में 7-6 और 7-6 से अपना नाम किया। और कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स विमेंस फाइनल। आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबालेंका चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में सबालेंका ने काजाकिस्तान की अलीना रबाकीना को 3 सेट्स में जेर किया। सबालेंका ये पहला इंडियन वेल्स टाइटल है। Third time is a charm. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुरुस्त हर वक्त
बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुलाजमीन को ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले तनख्वाह की अदायगी कर दी जाएगी। वफाकी सरकारी महकमों ने ईद से पहले तनख्वाहें अदा करने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फौरी रिलीफ और तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में आलमी सतह पर कशीदगी के तनाज़ुर में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत के बर वक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक मज़ीद इक़दाम पर मुशावरत जारी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जारी कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तब्दील होती आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सतह पर किफ़ायत शुआरी और बचत के लिए इक़दाम का निफाज हो चुका है और मज़ीद पर काम जारी है। उन्होंने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की तकसीमकार कंपनी शफाफियत के साथ मुकर्ररा कीमत पर तेल की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। इजलास में मुल्क में तेल की मौजूदा ज़खायर, ईंधन की तलब पूरी करने के लिए दरामदात और आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुआरी और बचत के तमाम नाफिजुल अमल इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इजलास में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और मुतय्यन कीमत पर फ़रोख्त की मुसलसल निगरानी की जा रही है। इस मकसद के लिए पाक ऐप में सारिफीन के लिए फ़ीचर शामिल किया गया है। इस इक़दाम से शहरी मुल्क में कहीं भी तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों फ़रोख्त के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर सकते हैं। इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म की तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा न करने के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह के मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरिया काज़किस्तान के सदर कासिम जुबारत तोक़ाइफ और काज़किस्तान के अवाम को आइनी रेफरेंडम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम की भरपूर शिरकत और रेफरेंडम के लिए वसी हिमायत का इजहार काज़किस्तान के शहरियों के अपने मुल्क की तरक्की के लिए क़यादत के इक़दामात पर एतमाद की अक्कासी करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान काज़किस्तान के साथ अपने करीबी और बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, जो कि बाहमी एहतराम, अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिशात और तामीरी ताउन की रिवायत पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए सफारतकारी, बातचीत और मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अमरीकी कायम मकाम नासिमुल उमूर ज़िक्री हाकनर राइडर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नाजरीन, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। ईरान का पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अक़वाम आलम में नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुज़ाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है।
से होनी जारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने ईरान का भरपूर साथ दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बैक वक्त अरब ममालिक और ईरान के साथ मुतवाज़न बातचीत कायम करके बेहतरीन सफारतकारी का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेपनाह पेचीदगियों के बावजूद एक इंतहाई अहम और मुस्बत तामीरी किरदार अदा कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के ख़ित्ते में बरादर ममालिक के दरमियान अमन के लिए की जाने वाली काविशें काबिल सत्ताइश हैं, जो जंग को महदूद करने में इंतहाई अहम हैं। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के 17वें रोज़ भी अफ्रीकैन के एक दूसरे पर मिसाइल और फ़िज़ाई हमले जारी हैं। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए यूरोप और चीन से मदद भी मांग ली है, जबकि बरतानिया ऑस्ट्रेलिया ने जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया है। दूसरी जानिब चीन ने भी जंग को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। बरतानिया की पहली तरजीह खित्ते में मौजूद अपने शहरियों की हिफाजत है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान की फौजी सलाहियतें बहुत कमज़ोर हुई हैं। बरतानिया इस बड़ी जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तनाज़े के इख्तिताम के बाद ईरान को जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने से रोकने और बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी को महफूज बनाने के लिए किसी न किसी किस्म के मुआहदे की ज़रूरत होगी। केयर स्टारमर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना ज़रूरी है, ताहम ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बरतानिया खित्ते में जहाज़ों की आज़ादाना नक्ल हमल को बहाल करने के लिए तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। That's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check. About a year before the World Trade Center came down, President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. Unfortunately, I'm not blaming him for that, but he didn't take it. And he ended up knocking down the World Trade Center, but I predicted that too. I predicted a lot of things. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait for blood. I mean, you know, these people literally need it. 95% of their energy or their oil comes out of the Strait, and they should be in here very happily helping us. And it's incredible. We have such great, we're #1 in oil by double now. We drill, baby, drill. We're double any other nation, and it's going to be soon triple any other nation, and that doesn't include Venezuela, who's been great. By the way, the relationship with Venezuela has been fantastic. Millions, literally millions of barrels of oil are being taken out, and it's been a great help, and it's been to their great benefit. The president has done a really good job. We get along with him really well, but we've taken out millions of barrels of oil and brought to Houston and other places for to the refineries. We have refineries set up specifically for that, and it's been a great relationship, and more and more is happening. It's a tremendous oil source, and we're stepping it up very rapidly. The big companies are going in, and they will actually numbers in a pretty short period of time, numbers that they've never been able to do. We'll be doing. There's a lot of oil under that land. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to say their names, but frankly, I don't know if they would want me to or not, because maybe they don't want to be targeted. But I say, wouldn't matter if you're targeted or not, because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. So now we're going to get
down to the reason. We'll take a couple of questions in a moment, but we're going to get down to the reason we're here today. Actually, this was set up a long time ago. It's the Trump Kennedy Center. Over the past year, we've made incredible strides to restore the true purpose and prestige of this revered institution. Together, we're going to ensure it remains the finest performing arts facility of its kind anywhere in the world. And I don't know that it ever really reached that stage, but it will over a period of time. We're rebuilding it. It's in very, very bad condition. It's been it's been somewhat of a disaster, to be honest with you. It's been let go to hell. That's what they've done. They did a poor job. They spent money in the wrong places. They built some theaters underneath that nobody uses, little ones, tiny theaters that cost $300 million. And the money was spent incorrectly, wrong. We're dealing with some networks on the possibility of renting those little theaters. Nobody's going to use them. They want the big halls. The halls are going to be incredible. They're in bad shape, but when they're completed, the bones are potentially something that could be unbelievable. So I want to, before we begin, I want to thank Rick Grinnell. He's been a friend of mine for a long time. He's been unbelievable. He was the ambassador, as you know, to Germany. There was no happier woman in the world than Angela Merkel. Angela. She called me, "Thank you, sir, thank you." Although she liked Rick a lot, there was nobody happier that he was no longer going to be the ambassador to Germany. He was difficult for them. He was not your typical ambassador. He was the opposite. He would do what was best for the United States, not for Germany. And I want to tell you, he did a great job. So good that I put him in charge of a thing called intelligence. And something he didn't really want to do, but he did it, and he did it incredibly well. There were a lot of leakers. He found out the leakers. And when he didn't find out who the leaker was in a certain area, he fired everybody. And he went into one room where there was leaks coming out. These are long-term problems that these various places have had. And he said, "Who's the one that leaked this?" And they wouldn't admit it, so he fired the whole room. And he did a good job. I'll tell you, he was very good. And during this transition period, I asked Rick if he would run it, because we wanted to see. And if you remember when we first took it over, I didn't do it with enthusiasm. I did it because somebody had to do it, had to turn it around, because it was failing. It would have closed, and physically it would have almost fallen down. It was in very bad shape. The steel columns outside, as an example, were meant to be covered. You know, exposed steel is unusual to have in building. What I do best in life is build. I build buildings really well and under budget and ahead of schedule. That's what I do, unlike the Fed building, which is going to cost billions of dollars. It may never open. I mean, right now, we have a wonderful Kevin, a wonderful new head of the Fed coming in. I don't know if he'll ever be able to occupy this complex that was destroyed by Jerome Too Late Powell. I call him too late because he's always too late with interest. Should cut interest rates. He should cut them right now. They should have a special meeting. What's a better time to cut interest rates than now? A third grade student would know that. But that's a terrible thing. But what I do is build. I build great stuff. And what we're going to do is, right outside. In fact, if you look behind me, see the nice gold curtains? If you want to look into a nice foundation and you want to see a lot of work, very deep, very, very deep for specific reasons, we have a magnificent ballroom being built, because this is the biggest room, and it holds like 98 people for dinner. But behind me, you're going to have a ballroom that this building and the people occupying it, in particular, every president for 150 years has clamored for a ballroom, a large, beautiful room. This is a cocktail room, and this whole floor will end up being a cocktail room for the cocktail area, or pre-area for the ballroom before dinners. So we'll have heads of state. We can't even do a heads of state dinner. Usually what they do is they
would do them on the lawn with a tent. But नाज़रीन, पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में बाजोड़ सेक्टर और कुरम सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मुतादिद खारजी भी जहन्नम वासिल हो गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं यासिर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत भरपूर कार्रवाई करते हुए बाजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मलहिका अफगान तालिबान की पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह हो गईं। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद खारिजी जहन्नम वासिल जबकि बाकी फरार हो गए। इधर बाजोड़ में अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान में सिविल आबादी पर मार्टर गोले के हमले पर खैबर पख्तूनख्वा अवाम ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि अफगान फोर्सेस ने मासूम लोगों को शहीद किया। पाक फौज इसका भरपूर जवाब दे। आम लोगों पर बमबारी करना जुल्म और बर्बरियत है। शहरियों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कोई मजम्मत नहीं देखी और न ही दहशतगर्दों के खिलाफ किसी सूबाई वजीर ने आवाज उठाई। हालिया जो बाजोड़ में हमला हुआ है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे फोर्सेस है, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बहादुरी से फितना अल ख्वारिज यानी हमारे बॉर्डर से जो उस तरफ जो दहशतगर्द हमला करते हैं हमारे, उनका मुंह तोड़ भरपूर जवाब देते हैं। जो दहशतगर्द TTP तालिबान जो है ये इसराइल के अलैकार है, ये इंडिया के अलैकार है, ये यहाँ पे आम शहरियों को टारगेट करते हैं। पाक फौज भी उनको जवाब दे रही है अपने पेशावराना सलाहियतों को बरवेकार लाकर। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के सदर में रोज भी अफ्रीकैन के एक दूसरे पर मिसाइल और फिजाई हमले जारी हैं। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए यूरोप और चीन से मदद मांग ली है, जबकि बरतानिया ऑस्ट्रेलिया ने जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब चीन ने भी जंग को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। तमाम तर सूरत हाल पर देखिए अरसलान असद की ये रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की अहम आलमी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए नेटो मदद करे, वरना तंजीम का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में खत्म कर दिया गया है और ये जंग चंद हफ्तों या फिर इससे भी पहले खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया की वजीर ट्रांसपोर्ट कैथरीन किंग ने पीर को अपने बयान में कहा कि उनका मुल्क आबनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भिजवाएगा। जापानी वजीर दिफा ने पार्लियामेंट को बताया कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हम समुद्री हदूद में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखते। इसी तरह जर्मनी ने भी कहा कि नेटो का आबनाए हुर्मुज़ में कोई किरदार नहीं। दूसरी जानब चीन ने मशरक़ वस्ता में जारी जंग में मुलव्वस तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक वो इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए राब्ते में है। ताहम उन्होंने इस सिलसिले में नेटो के किरदार को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। अमरीकी सदर के बयान के बाद यूरोपीय मुल्कों के वज़राए
خارجہ کا بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں روس یوکرائن تنازع اور حالیہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور تنظیم کے بحری مشن میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپی حکومتوں کے لیے اب بین الاقوامی قانون سے اپنی وابستگی کا ایک واضح امتحان سامنے ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ جاری جنگ کے بارے میں اپنے رد عمل میں وہ ان اصولوں کی پاسداری کریں جن کی وہ اکثر حمایت اور وکالت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ وہ ابنائے ہرمز تک محفوظ رسائی کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ تہران نے کسی جنگ بندی کی درخواست نہیں کی۔ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ اس جنگ کو غیر قانونی نہ مان لیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران ابنائے ہرمز میں کسی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر ایرانی شہروں تہران، شیراز، تبریز پر وسیع پیمانے پر حملوں کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی فوج نے میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل ڈیفنس فورس نے تہران، شیراز اور تبریز میں ایرانی حکومت کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ رات بھی تہران پر شدید بمباری کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی خلیجی ممالک پر ڈرونز حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب سعودی عرب نے ملک کے مشرقی علاقوں میں 60 سے زائد ڈرونز کو روکا ہے۔ بحرین، کویت اور قطر نے بھی متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم ابو ظہبی میں میزائل گرنے سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ خلیجی ممالک کے سب سے مصروف دبئی ایئرپورٹ کو ڈرون حملوں کے بعد عارضی تعطل کے بعد محدود پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے اپنی ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ اس سے پہلے UAE کے حکام کے مطابق ایران سے فائر کیے گئے 37 ڈرونز کو روکا گیا، جبکہ ایک ڈرون ایئرپورٹ کے ایک آئل ٹینک پر گرا جس سے آگ بھڑک اٹھی تھی، تاہم بعد میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی اسلحے کے ذخائر کو تباہ کرنے کے دعوے کے جواب میں ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف داغے گئے زیادہ تر میزائل تقریباً 10 سال پہلے تیار کیے گئے تھے، جبکہ جدید اور زیادہ طاقتور ہتھیار ابھی محفوظ رکھے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعیمی کے مطابق 28 فروری سے اب تک تقریباً 700 میزائل اور 3600 ڈرون امریکی اور اسرائیلی اہداف پر داغے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، رحیم یار خان کے علاقے چک 123 میں عمارت کی چھت گرنے سے 8 خواتین جاں بحق جبکہ 57 سے زیادہ شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ یہ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم لینے کے لیے جمع تھیں۔ ملبے تلے دبی خواتین کو نکال کر شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس افسوسناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فوری طور پر رحیم یار خان پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ متعلقہ حکام واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ آئندہ ہفتوں کے لیے بھی ایندھن کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر، خام تیل کی درآمدات اور سپلائی چین کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ایندھن کی دستیابی اپریل کے وسط تک ہے اور اسے مزید بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اجلاس میں ہدایت کی گئی ہے متعلقہ ادارے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور مارکیٹ کی صورتحال پر کڑی نظر رکھیں تاکہ ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت اب غیر ملکی شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کمپنیز اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے اور حکومتی سیکیورٹیز کے علاوہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے گی جس پر انہیں پرکشش منافع بھی ملے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اہم اقدام حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں کے ساتھ مزید مضبوطی سے جوڑا جائے اور ایک محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل بینکاری نظام کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में इजलास की सदारत की। इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान, अफगान महाजरीन की वापसी, हवाला हुंडी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के खात्मे समेत अहम उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए पहले मरहले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3000 एहलकार तैनात करने, FIA को मजीद फाल बनाने, तमाम खाली आसामियों पर मकामी अफराद की भर्ती का फैसला किया गया। इजलास में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मौसर मॉनिटरिंग और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सूबे में अमन अमान के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब काबीना के अरकान, मुआवनीन खुसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह, जबकि ग्रेड 17 और सीनियर सरकारी अफसरान 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत शारी फंड में रज़ाकाराना तौर पर देंगे। तफसील बता रहे हैं लाहौर से वसीम सज्जाद अपनी इस रिपोर्ट में। जंगी हालात में किफ़ायत शारी के लिए पंजाब के वज़रा, अरकान असम्बली और सरकारी अफसरान रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें वज़ीर आज़म कफ़ायत फ़ंड में जमा कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के पहले वीडियो लिंक इजलास में फजूल खर्ची खत्म, अखराजात में कटौती, 2 माह की तनख्वाह बंद, किफ़ायत शारी का फैसला और ये रकम तरक्की और अवामी सहूलतों पर खर्च करने का फैसला किया गया। किफ़ायत शारी मुहिम के लिए पंजाब की काबीना के अरकान, मावन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म कफ़ायत फ़ंड में देंगे। पंजाब असम्बली के अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% वज़ीर आज़म कफ़ायत फंड में रज़ाकाराना तौर पर देंगे, जबकि ग्रेड 17 और ऊपर के तमाम सरकारी अफसरान 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह कफ़ायत फंड में देंगे। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के मफाद के बारे में सोचती हैं। अवामी मफादात के बरक्स कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं होगा। सूबाई काबीना ने रमज़ान निगहबान के जरिए लाखों खानदानों को रिलीफ देने पर इजहार तशक्कुर किया और ज़िला इंतजामिया, पुलिस, पंजाब बैंक और तमाम मुतल्लिका की कारकर्दगी को सराहा। काबीना इजलास में पेफटेक के लिए 137 नई असामियों, पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने, आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने, कसूर में मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अराजी फराहम करने, रावलपिंडी शहर के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्चर्ड डैम की तामीर, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में भर्तियों और कुनिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर की भी मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में पंजाब एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए SSG कमांडोज तरबियत याफ्ता ट्रेनर्स की खिदमत हासिल करने और शेख जैद टीचिंग हस्पताल रहीम यार खान की तकमील समेत दीगर अहम मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। कल से 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 17 मार्च से मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। बालाई और वस्ती पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, झेलुम, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश और आंधी का इम्कान है। बालाई पंजाब में बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ठट्ठा, कराची 39, मिट्टी, तुरबत, लसबेला, हैदराबाद और छोर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 10, लाहौर 15, कराची 23, पेशावर 11, गिलगित 7, स्कर्दू 2, कोयटा 7, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में 5 और श्रीनगर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म मुफ्त सोलर पैनल स्कीम के तहत आज स्कर्दू, शगर, गांचे और घरबिंग में डिजिटल कुरानदाजी के जरिए कामयाब उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। तफसील बता रहे हैं सईद वज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म मुफ्त सोलर पैनल स्कीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में कुरानदाजी का अमल मुकम्मल। स्कर्दो एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स में DC स्कर्दो हमजा मुराद ने कुरानदाजी का अमल मुकम्मल किया। 2677 घरानों को डिजिटल बैलेटिंग में उनका नाम निकला है और वो सोलर हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि बिजनेसेस के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स थे उन तमाम के लिए सोलर अप्रूव हो चुका है। और इसके अलावा जो हमारे लोग जैसे शंगुस, शगरथंग, ऑफ ग्रिड इलाका जात में रहते हैं और उन तमाम के लिए भी सोलर का अप्रूव हुआ है। और हमारे IT बिजनेसेस जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए भी
तमाम के लिए एप्लीकेंट्स के लिए सोलर अप्रूव हुआ है। शिगर में भी वज़ीर-ए-आज़म सोलर स्कीम की कुरानदाजी की गई, जिसमें 779 अफराद कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट शिगर में टोटल हमारा जो कोटा हमें मिला है वो अराउंड कोई 2.5 मेगावाट बनता है। 2.45 मेगावाट टोटल डिस्ट्रिक्ट शिगर का शेयर है। वाट जो बनता है वो 7,878 है, यानी हमारा जो कोटा है उससे 3 गुना ज्यादा इस वक्त लोगों का डिमांड हमें मिला है। गांचे में भी वज़ीर-ए-आज़म सोलर स्कीम के तहत कुरानदाजी की गई, जिसमें 1140 अफराद डिजिटल कुरानदाजी के तहत मुंतखब हुए। डिजिटल कुरानदाजी हमारी यहाँ पे हो रही थी प्राइम मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम फॉर गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उसकी डिजिटल बैलेटिंग अभी मुकम्मल हो चुकी है। उसके तहत 1312 अफराद डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हैं वो बैलेटिंग में आए हैं और उसके अलावा 128 बिजनेसेस की कुरानदाजी में नाम आए हैं। खरमंग में भी वज़ीर-ए-आज़म सोलर स्कीम के तहत कुरानदाजी की गई, जिसमें 580 अफराद अहल करार पाए। खरमंग का जो हमारा शेयर आया था जो फ्री सोलर प्लेट्स का, वो हमारा कोई 2.08 मेगावाट था और आफ्टर बैलेटिंग जो है हमारे शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स हुए हैं वो 580 हुए हैं, जिसमें हमारे बिजनेस के जितने भी एप्लीकेशंस थे वो सारे एक्सेप्ट हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म सोलर स्कीम के तहत मुंतखब अफराद को जल्द सोलर प्लेट्स फराहम की जाएगी, ताकि दूर दराज इलाकों के शहरी खास तौर पर मुतबादिल तवानाई से फ़ायदा उठा सकें। सईद वज़ीर, PTV न्यूज़। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जीर इनाम मेमन ने कराची में मुलाकात की और महकमे ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि कराची में आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का गुलशन मेमार से टावर तक नया रूट शुरू किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के तहत टंडोला यार्ड से हैदराबाद, शिकारपुर से सक्खर और खैरपुर से रोहड़ी के दरमियान भी बसें चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। उन्होंने मुकामी हुकूमतों में बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने के हवाले से कानून साजी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रहनुमाई ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई फाइनेंस कमीशन का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने भी मुलाकात की, जिसमें कौमी असम्बली से मुतालिक उमूर बिलखुसूस कानून साजी में पार्टी के किरदार पर बात हुई। शाजिया मरी ने सांगड़ में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक इकदामात से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने से असम्बली राजा रजाक ने कराची में मुलाकात की। इस दौरान जिले की तंजीमी सूरत हाल के साथ अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान पर मुल्क के नुमाया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और समाजी रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा है कि 23 मार्च वो तारीखी दिन है जब कौम ने अपने तशख़्ख़ुस, वक़ार और आज़ाद वतन के ख्वाब को हकीकत में बदलने का आज़म किया। मायूसियों के अंधेरों में हम रोशनी के चिराग जलाते हैं। वो जो लबों पे आ नहीं सकते, बिन कहे बिना सुने हम इस दर्द को पहचान लेते हैं। मुश्किलात की परवाह किए बगैर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। हम एक हकीकत पसंद कौम हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हौसला रखती है। 23 मार्च सिर्फ एक करारदाद नहीं, ये वतन एक दूसरे के साथ देने से बना था। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल का हामिल है। ये नाम है उन वादों का जो एक कौम ने किए सख्त जमीन से। आइए मिलकर दुनिया को बता दें कि हम एक जिंदा कौम हैं। हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान की असल ताकत इसके लोग हैं। और जब लोग जुड़ते हैं तो पाकिस्तान मजबूत होता है। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने का भारतीय दावा दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहां बड़ी तादाद में काबिज फौज तैनात है।
उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम खौफ और दहशत, जबर और इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मोदी हुकूमत आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए हालात मामूल के मुताबिक होने का प्रोपेगेंडा कर रही है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा इलाके की ज़मीनी सूरत हाल यह है कि मुहासरे और तराशी की कार्रवाइयाँ, बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, कत्ल गारत और काले कवानीन का इस्तेमाल रोज़ का मामूल है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल का संजीदा नोटिस ले और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों को मकबूजा जम्मू कश्मीर भेजे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के खित्ते लद्दाख में लेह और करगिल के हज़ारों लोगों ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी रैलियाँ निकाली। मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगा रहे थे। जिनेवा में बैनुल-अक़वामी मुस्लिम ख़वातीन यूनियन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के 61वें इजलास के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात के बाद सुकड़ती हुई शहरी आज़ादियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदा सोबे अशाल ने कहा कि मकबूजा इलाके में इजहार राय समेत बुनियादी आज़ादियों को मुनज़्ज़म तरीके से सलब किया जा रहा है। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में रमज़ान निगहबान बाजार में आवाम को सस्ती अशाई ज़रूरिया की फ़राहमी जारी है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने बाजार का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे फरहान मजीद। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टोबा टेक्सिंग में रमज़ान निगहबान बाजार कायम किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखों पर दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने रमज़ान निगहबान बाजार का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना करते हुए एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। आज हम आपके सामने यहाँ टोबा टेक्सिंग में मौजूद हैं और यहाँ आने का जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी अवलीन तरजीह है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो कम आमदन वाला हमारा तबका है उसकी जेब पर कोई भी इजाफी बोझ ना पड़े। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सलमा भट्ट का कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत सूबा भर में 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिनमें से 46,000 से जायद मुस्तहिक अफराद का तल्लुक जिला टोबा टेक्सिंग से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक निगहबान बाजार में आवाम को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से एशिया खुर्दोनोश को सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बना रहे हैं। फरहान मजीद, PTV न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। इस्लामाबाद में वाक़ दरबार गोलड़ा शरीफ में गोला दाग कर रोज़ादारों को सहर और अफ्तार के वक्त की इत्तला देने की 100 साल पुरानी रिवायत आज भी बरकरार है और बड़ी तादाद में रोज़ादारों के लिए अफ्तारी और सहरी का एहतमाम भी किया जाता है। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। इस्लामाबाद में वाक़या गोलड़ा शरीफ दरबार न सिर्फ रूहानियत का मरकज़ है बल्कि यहाँ रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक मुनफरिद रवायत भी देखने को मिलती है। माजी में जब घड़ियों और जदीद ज़राए का इस्तेमाल आम नहीं था तो इसी तरीके के ज़रिए इलाके के लोगों को सहर और अफ्तार के वक्त का इल्म होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद सहूलियात तो आ गईं, मगर गोलड़ा शरीफ में ये 100 साल पुरानी रवायत आज भी उसी एहतराम और जोश के साथ जारी है। ये सहरी के वक्त भी होता है एक गोला और इफ्तारी के वक्त 2 गोले होते हैं। पीर सैयद मेहर मोहिउद्दीन बाबूजी, फिर उनके बेटे बड़े लाला जी हज़रत पीर सैयद मेहर मोइनुद्दीन बड़े लाला जी, उसके बाद फिर ये उनके बेटे पीर सैयद हुसामुद्दीन जिलानी अब ये इस रवायत को कायम रखे हुए हैं और ये इंशाल्लाह आगे जारी और सारी रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान दरबार पर रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन जमा होते हैं। दरबार इंतज़ामिया और मुखैर हजरात की मदद से रोज़ाना बड़ी तादाद में रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। रूहानियत और अकीदत से भरपूर इस माहौल में ज़ायरीन एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अफ्तार करते हैं और रमज़ान की बरकतों से फैज़याब होते हैं। 100 साल से पुरानी ये रवायत न सिर्फ माजी की याद ताज़ा करती है बल्कि लोगों को उनकी सकाफती रवायात से जोड़े रखने का जरिया भी है। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और ईद उल फितर की आमद बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी खरीदारी उरूज पर है। तफसील मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट में। ईद उल फितर करीब आते ही रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजारों में गेमा गेमी बढ़ गई है। बाजारों में खवातीन, मर्द और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मेहंदी
लेने आई हूँ और शूज़ लेने आई हूँ, कपड़े लेने आई हूँ, पिन लेने आई हूँ। हम ईद के कपड़े करने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। चूड़ियाँ लेनी है, एक मैंने जोड़ा ले लिया है, अभी दूसरा लूँगी। चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए और ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए, तो अभी हम ईद की शॉपिंग ही कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए अहले खाना के साथ खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों की मेहंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, बच्चों के तो इतनी डिमांडें हैं, कपड़े लेने हैं, लाइट वाले जूते चाहिए और महंगाई इतनी है कि जाके दुकानदार तो सीधा बात ही नहीं करता। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई हूँ शॉपिंग करने ईद के लिए, और अभी हम लोग देख रहे हैं कपड़े लेने हैं बच्चों के, कैसे किस तरह के। मैं यहाँ पे ईद की शॉपिंग के लिए आया हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आई रियली अप्रिशिएट सीएम मरियम नवाज साहिबा कि उन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट और इतनी अच्छी इनिशिएटिव वो ले रही हैं। इंतजामिया की जानिब से बाजारों में सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। शहरियों का कहना है ईद का असल मजा बच्चों की मुस्कुराहट और अपनों का साथ है। इसी जज्बे के तहत बाजारों में ये गेमा गेमी चांद रात तक जारी रहेगी। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।